Today we are going to discuss the carboxylic acid and their reactions. Please give a yes. Preparations we have done in the previous class. Okay, reactions of carboxylic acid. One of the reactions I think we did, and that was reduction. That was reduction. And carboxylic acid undergo reduction with ordinary reducing agent like LiLH4 to form the primary alcohol. Okay, today we are going to see the reaction with reaction of carboxylic acids with metals and the metal compounds. Before I go for the reactions, one thing which you always understand about the acids, including the carboxylic acids, is this. If this is a carboxylic acid CH3COOH, it ionizes, it ionizes to give the last hydrogen, the functional group wala hydrogen, to form CH3COO negative plus H positive. So हम कहते हैं कि acids are proton donors and carboxylic acids donate their hydrogen or proton of the functional group COOH वाला, not with that hydrogen carbon के साथ जो attach है. But ये ionization बहुत ही कम होती है. They partially ionize. बहुत ही कम ionize करते हैं. Sorry? The paper said that this has a T negative, T minus, it'll ionize will be partially ionized in the T minus, which group will it be? So we said it gave us an option of 3 carboxylic acid. Carboxylic 1 all. Yeah. Okay. So they partially ionize. Okay. So when they partially ionize, they lose their hydrogen ions, right? So if this acid is ethanoic acid, what is this formed? This is ethanoate ion, okay? Which is the conjugate base of this acid, and this is what they ionize. They are weak acids, partially ionized, hence they are weak acids. Now, if you react them with the metals, now coming back to their reactions. So what the metals do, they replace their sodium metal like this. The sodium metal will come, or any metal which you are reacting with them, come and displace the hydrogen. तो क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा CH3COO negative. Sodium is in a group 1 positive. So salt writing के लिए ये positive negative एक दूसरे को cancel कर देंगे. So the formula of the salt formed will be CH3COONA plus the hydrogen gas. But yes, H2 half से multiply कर दिया in order to balance because the one hydrogen was lost. So आप कहते हैं कि इसका मतलब जब एसिड रिएक्ट करता है तो ये क्या चीज बन जाती है? दिस इज सॉल्ट. और इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? जो एसिड का नाम होगा. इफ द एसिड इज इथेनोइक एसिड तो फिर सॉल्ट क्या होगा? यस, वेल डन, सोडियम एथेनोएट. Okay, so and one thing which is common to all of these, okay, even if you change the metal to the metal oxide, for example, you take Na2O or you take NaOH or you take Na2CO3, metal oxide, metal hydroxide, metal carbonate, or even metal hydrogen carbonate. Every time, one thing that is common. Salt. Yes, the salt that is going to be formed. Everything, one thing that is common, the sodium is going to go and displace the hydrogen. Okay, so salt is always formed. For example, इस case में भी CH3COO Na बन जाएगा. Plus, अब now not a hydrogen gas. Yes, good. ये hydrogen और ये oxygen combine करके क्या बना देंगे? H2O. तो बैलेंस करने के लिए हम इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. इसी तरह अगर आप H3COOH को
NaOH से मिला देंगे तो क्या बनेगा? CH3COO Na plus H2O. Okay, so again salt and water. Similarly, if you react it with yes, carbon dioxide and water. So if you react it with CH3COOH, so वही salt CH3COONA sodium ethanoate plus as carbonate जब भी react करेगा carbon dioxide and water is formed. Yes, in the last case the same carbon dioxide and water. Okay, so and these two reactions, bacho, the carbon dioxide is released with effervescence or fizzing. Hence, these reactions are also test of functional group. तो ये as a test भी है. कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का ये टेस्ट भी है कि अगर कार्बोनेट डालने से फिजिंग हो तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑल्दो ये भी फिजिंग होती है सोडियम मेटल के साथ, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है, उसमें भी एफर्वेसेंस और फिजिंग होती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस. वन मोर थिंग, जो डायरेक्ट मेटल है ना बच्चों, वो सारी मेटल्स नहीं रिएक्ट करती. कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, except these metals. So all the metals react except these metals. ये आपको पता ही है, ये मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होती हैं, ये नहीं करती. हाँ, इनके ऑक्साइड्स, इनके कार्बोनेट्स वो सब रिएक्ट करते हैं, बट मेटल्स प्योर नहीं रिएक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोना गिव यू, ये देखें, CH3 CH2 COOH plus CuO. Can you write the product for this? Now, अगर copper होता तो no reaction था. If it would have been like this plus Cu, so no reaction. नीचे वाला भी. Please write the product in all these cases. Product C. What is the product? The first one. Again, the copper is going to go and displace this hydrogen. So CH3, CH2, COO negative. But this time, keep in mind, copper is not 1 positive. So copper is 2 positive. So now the formula writing principle, if you follow, you know how to write the formula. In this case, when 2 positive cannot cancel the 1 negative, you have to cross multiply. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? H2CO bracket wise. Okay. Then Cu plus H2O. और नाम क्या होगा बच्चों इसका? यस, अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है तो क्या नाम होगा? कॉपर 2 प्रोपेनोएट. कॉपर के आगे तो 2 लिखते हैं ना, आपको पता है ना, उसका चार्ज लिखते हैं. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टू? It's calcium ethanoate plus hydrogen. कैल्शियम एथेनोएट का फार्मूला क्या होगा? CO bracket wise C. वाई ट्वाइस? बिकॉज कैल्शियम भी क्या होता है? +2, और वो क्या होता है? -1. तो दे कैंसल आउट, दे क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज दे डोंट कैंसल. ओके, प्लस क्या बन गया? 1 by नो, 2 से मल्टीप्लाई. What about the last one? magnesium ethanoate
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस होगा इसके साथ भी, प्लस CO2। ओके, सो बैलेंस के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैग्नीशियम एथेनोएट, बार दफा इसको इस तरह भी लिख देते हैं। इधर देखो बच्चों, जैसे नॉर्मली तो आपको पता है पॉजिटिव आयन पहले होता है, तो बार दफा एग्जामिनर इसको इस तरह भी लिख देते हैं, इट्स सेम थिंग। बार दफा इसको इस तरह भी लिख देते हैं, एट टाइम्स इसको इकट्ठा कर देते हैं। Mg गिव्स अस व्हाट, C4O4, राइट, C4O4H6, okay, right? All right, so this is the how, like reactions with metals. Next heading there, esterifications. There is another reaction of carboxylic acids, esterification. आपको याद होगा, इट्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करते हैं? अल्कोहल से। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। इधर सुनो, किसी को याद है कौन क्या लूज करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना और अल्कोहल अपना H। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने दोबारा लिखा, बस इसका OH नहीं लिखा। सुनो बच्चे, और अल्कोहल का क्या डाल दिया मैंने, इस CO के बाद से अल्कोहल शुरू होना है, तो अल्कोहल का ऑक्सीजन विल स्टार्ट, और उसके साथ एक कार्बन है, तो वो बन गया CH3 प्लस H2O। ये जो चीज बनी, आई होप यू नो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड, एस्टर। और इस एस्टर का ही एक नया फंक्शनल ग्रुप है, नाम भी इसी से मिलता है। कैसे इसी से मिलता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा उसको इधर क्या कर देते हैं, OH, और जो अल्कोहल का नाम होगा उसको इधर क्या कर देते हैं एस्टर में, आयल। तो क्या नाम हो जाएगा फिर, और अल्कोहल लिखा पहले जाता है, यस, अल्कोहल मैथनॉल से मिथाइल बन गया, और एथेनोइक एसिड से क्या बन गया, इथेनोइक। This is the ester that is formed, right? So, for example, आप इसका बनाएं, क्या बनेगा, can you write the product? Ethyl इधर देखो बच्चे, इसमें क्या किया आपने, it has lost its OH, it has lost its H. So first I'm going to write carboxylic acid with CH3, CH2, CO, and then what next? Alcohol's O, and then how many carbons with alcohol? That's H2. Okay, so this is the ester that is formed. What is the name of ester? Ethyl propionate. So एक चीज बच्चों आपने यहाँ नोटिस की कि carboxylic acid alcohol से react करना. Now look at this. This compound is known as 2-hydroxy. If I write the name of this, propanoic acid. Now please pay attention. क्या नाम है इसका, 2-hydroxy propanoic acid. अगर आप देखें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हैं? यस। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखो, आप सुनना गौर से, तो आपको इस कंपाउंड में स्टेरिफिकेशन करने के लिए यू डू नॉट डू अनदर कंपाउंड। इसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आपस में स्टेरिफाई हो सकते हैं, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट करेगा और दूसरा क्या एक्ट करेगा,
अल्कोहल एक्ट करेगा। मिसाल देता हूँ, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, OH को इधर लिख देता हूँ और CH3 को इधर लिख देता हूँ। मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O OH, CH3 में ब्रांच मिलेगा और इधर OH। क्या ये वही चीज है ना जो ऊपर है? प्लस इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। क्या ये आपस में स्टेरिफाई हो सकते हैं? पहले वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लूज होगा? OH। और इसका क्या लूज होगा? तो स्टेरिफाई हो जाएंगे ना। तो आप कहते हैं जी जो एस्टर बनेगा, जरा गौर से मुझे देखना, लिखना नहीं है। क्या एस्टर बनेगा? HOCH, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर CH3, देन C डबल बॉन्ड O। यही है ना? उसके बाद से इसका तो OH चला गया ना। उसके बाद कौन शुरू हो गया आगे? O ऑफ व्हाट? अल्कोहल। फिर आगे CH3 in the branch, and then C double bond O OH। अब ये जो एस्टर बना है प्लस वाटर, ये जो एस्टर बना है बच्चों, इसमें एक खास बात अभी भी है। वो क्या है? एस्टर भी है, इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप है, देखिए जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है, और एस्टर भी है। अब इसमें एक और सुनना जरा, अब ये ट्रिकी चीज है, वो सुनना प्लीज, पे अटेंशन, दिस इज वेरी ट्रिकी। वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे मॉलिक्यूल इसको दूसरे मॉलिक्यूल की भी जरूरत ना पड़े। ये वाला अपना OH लूज करे और ये अपना H लूज करे, यानी दोनों एंड्स ऑफ वन मॉलिक्यूल दे कैन आल्सो स्टेरिफाई। आप कहते हैं इससे तो, ये हमने पहले पढ़ा है वहां जब नेमिंग कर रहे थे, कि इससे तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। हम कहते हैं यस, साइक्लिक बनेगा और दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। एक ये जिसको मैं अभी नंबर 1 कह रहा हूं, और एक ये जो नया बनेगा नंबर 2। तो आप कह रहे हैं दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे और ये साइक्लिक बन जाएगा, जैसे डायस्टर भी बोलते हैं। तो ये एक साइक्लिक, बट मेन चीज ध्यान में रखनी है कि साइक्लिक एस्टर क्या होता है। तो O लेवल वाला नहीं काम पूछते, यहाँ इस तरह का एस्टर का आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें साइक्लिक एस्टर है। अब इसको लिखना कैसे? अब सीधा सीधा है ना। ये ऑक्सीजन अब किसके साथ जुड़ गया, आप बताएं जरा। ये ऑक्सीजन का अब किसके साथ बॉन्ड बन गया? इस C डबल बॉन्ड O के साथ। वो कहते हैं लिखने में थोड़ी जरा इसकी मैं वो कर लेता हूँ आसानी। इधर देखो, अब मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये CH है, इसके ऊपर कौन है? CH3। आगे कौन है? C डबल बॉन्ड O। और फिर जो इससे अगला O है, ये जिसको मैंने डबल टिक किया है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ओके, ताकि मैं इस मॉलिक्यूल को घुमा के इस तरफ लाना चाहता हूँ, उस CO को इस O के नजदीक लाना चाहता हूँ, ताकि आपस में सामने आमने आके बॉन्ड बना सके। उस O के बाद कौन है आगे बच्चों? इस CH को इधर ले आया मैं, नीचे CH3। और उसके आगे कौन है? C डबल बॉन्ड O। यही है ना, C डबल बॉन्ड O। और इसका फिर आगे किसके साथ बॉन्ड है? उस दूसरी साइड वाला जो O है ना, उसको मैं इधर ले आता हूँ और इनका आपस में क्या बना दो? बॉन्ड। ये बन गया ना। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एस्टर और डायएस्टर, और प्लस अनदर H2O। समझ आ गई बात? अब इसको ड्रॉ कर लें और गौर से देखें क्या किया, राइट। सो इस तरह का सवाल आपको आएगा। ओके, या ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि ये एक कंपाउंड है, इधर देखो। इसका साइक्लिक एस्टर बनाना है, यानी इसको इसी के साथ स्टेरिफाई करना है। ये अपना क्या लूज करेगा? ये अपना क्या लूज करेगा? आपस में क्या हो जाएगा? इनका बॉन्ड बन जाएगा यहां से। ऐसे ही है। तो लिखने के लिए हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, इसके इधर कौन है? CH2। इधर कौन है? CH2। इधर कौन है? CH2। कितने CH2 है? एक दो तीन, एक दो तीन चार हो गए। एक मिनट में सुनता हूँ। और फिर आगे कौन है? O। और फिर ये O अब क्योंकि चला गया ना इसका, तो ये CO से बॉन्ड हो गया, तो ये। जी बच्चे। Can we not write C for H2 for all the CH2s? या यू कैन।
You can write CH2. No, you can write it like this: CH2 4 times. In the structure. No, structure में नहीं, skeletal में नहीं, वो आपको दिखाना पड़ेगा. Okay, do you get it? This is called cyclic ester, right? So this is how the one end of the carboxylic, the other end of alcohol, they esterify. जी नहीं, skeletal नहीं है. अगर आप इसका skeletal बनाना चाहते हैं तो वो ये बनेगा. इधर देखो, साइक्लिक है, skeletal नहीं है ये skeletal है. ओके, उसका skeletal बनाना चाहते हो तो वो ये होगा, ये 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 ओके. Got it? Yes, sir. Okay, next is okay, ये था स्टेरिक. ओके, वन मोर थिंग प्लीज. ये जो स्टेरिफिकेशन है ना, इसमें क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं और वाटर लॉस होता है, दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन. ऑल दोज रिएक्शंस इन व्हिच द बाय द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स ज्वाइन अप, नोन एज कंडेंसेशन. तो लिख लीजिए कंडेंसेशन रिएक्शन. दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन. Okay, next heading देंगे, that's all about the carboxylic acid. Next आखिरी फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स. एस्टर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? वही जो इसका होता है, CnH2nO2. फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड O के साथ R. ओके, प्रिपरेशन अभी अभी हमने इसको प्रिपेयर किया है. कैसे प्रिपेयर होगा बच्चों? यस, तो इसे कहते हैं बाय एस्टेरिफिकेशन. Reactions of carboxylic acid. Oh, sorry, reactions of ester. एस्टर का बच्चों एक ही रिएक्शन है, सुनो जरा. और वो क्या रिएक्शन है? प्लीज पे अटेंशन. वन रिएक्शन ऑफ द एस्टर एंड दैट इज दिस वन. इधर देखो, अगर एस्टर को पानी से रिएक्ट कराओगे तो वापस क्या, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना. तो एस्टर को पानी से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा वापस, और रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. सो एस्टर का एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस के अंदर जिसमें एस्टर क्या करते हैं, पानी से रिएक्ट करते हैं, नोन एज हाइड्रोलिसिस, और वापस क्या बना देते हैं, वही कार्बोक्सिल. और इधर देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहां से अब आप देखो CO को O से जोड़ा था ना हमने, यही बॉन्ड वापस टूट जाएगा. और आपको याद हो तो CO से क्या हटाया था हमने, वो उसको वापस दे दो. और इससे क्या हटाया था, वो इसको वापस दे दो. तो फिर वापस क्या बन गया, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो लिखिए जरा, बस एक चेंज है वो मैं बताता हूँ. लिखिए जरा, रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स में देयर इज ओनली वन रिएक्शन नोन एज हाइड्रोलिसिस. जो कि पानी के साथ रिएक्शन होता है. तो अगर ये एक एस्टर है तो इसका आप कहते हैं ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इन हाइड्रोलिसिस, इसे H मिलेगा, इसे OH मिलेगा. तो आप कहते हैं वही वापस प्रोडक्ट बन जाएंगे. हम कहते हैं यस, एक बन जाएगा CH3COOH जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3OH जो कि क्या है, अल्कोहल. अब इसमें एक चेंज है बच्चों, वो ये कि एसिड जो है ना डायरेक्टली पानी से नहीं रिएक्ट करते. आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालने पड़ते हैं पानी में, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कली. जब एसिड डालने पड़ते हैं तो उसे कहते हैं डाइल्यूट HCl aqueous. So esters, in order to undergo the hydrolysis, they do not react with water, they react with dilute acid. और साथ में उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है. ओके, तो आप समझे वो पानी ही है बट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड पानी में डाले हुए हैं, बस इतना डिफरेंस. ओके, सो ये बन जाएगा
फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट HCl, और फिर दूसरा है यस डाइल्यूट NaOH aqueous। तो कोई भी अल्कली डाल सकते हैं, कोई भी एसिड डाल सकते हैं और हीट करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम, जब आप अल्कली डालते हैं तो तब भी आ जाती है तो पानी से रिएक्शन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और अल्कली डाले हैं, बट ये जो पानी के साथ रिएक्शन होता है ना, जब अल्कली के साथ आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट तो वही बना, एक को H एक को OH मिला, CH3COOH और CH3OH बन गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसे मिक्सचर में एसिड बना है जहां पहले से क्या प्रेजेंट है, एल्कली। तो हम जानते हैं, अभी ऊपर करके आए हैं कि एसिड और एल्कली फिर आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट करके क्या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बन जाएगा, यस। तो इसलिए आप कहते हैं कि जब आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं, यू डोंट गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, you get what? Yes, salt of carboxylic acid, राइट। तो आप इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इतनी डिटेल आप नहीं लिखते, आप प्रोडक्ट बस यूं लिख देते हैं। इधर देखो, आप प्रोडक्ट में लिख देते हैं कि इन दिस केस द प्रोडक्ट इज CH3COONA प्लस CH3OH। तो कोई अगर आपको कहे नहीं नहीं हमें तो एसिड चाहिए, तो फिर आप बाद में इसको एसिडिफाई कर सकते हैं। आप कहते हैं अच्छा पहले नहीं किया ना, तो अभी एसिडिफाई कर दो इसको, ठीक है, यानी फ्यू ड्रॉप्स HCl के डाल दो इस सॉल्ट में, तो भी आपको वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, ये तब भी आप कर सकते हैं, राइट। तो लिख लीजिए दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो इसके रिएजेंट लिख लें, क्या होंगे, रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl एक्वस, डाइल्यूट एसिड लिख देता हूं, वो कोई भी एसिड हो सकता है, जिसको अमूमन एग्जामिनर H3O पॉजिटिव लिख देते हैं, या डाइल्यूट एल्कली, कोई भी एल्कली हो सकती है जिसको एग्जामिनर OH नेगेटिव एक्वस लिख देते हैं। दोनों की जो कंडीशन है उसमें हीट करना पड़ता है, और दोनों की जो वो है टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और इसे कहते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब बच्चों सुने, यहाँ पे हमारे जो रिएक्शंस है ना वो तो हो गए हैं एंड। अब आपको पहले तो मैंने स्लोली स्लोली कह रहा था, अब मैं आपको जरा स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, आपने मंडे तक ये वाली शीट करके लानी है। इस शीट को करने का मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, प्लीज बेयर विद मी। इधर देखें, इसका मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, लास्ट टाइम बताया था ना क्या करना है इसका, नहीं मेरे ख्याल बताया। हर केस में आपने क्या लिखना है, रिएजेंट, कंडीशन और टाइप ऑफ रिएक्शन, 3 चीजें लिखनी। लास्ट टाइम शायद बताया था। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल आज के कोई रिएक्शन निकाल लेता हूँ, इधर देखो, आज का जो रिएक्शन निकाल ले, इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपने ये देखा कि इस रिएक्शन में कौन किस में चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, सॉल्ट में। तो आपने पहले कार्बोक्सिल जो जो रिएक्टेंट साइड पे है उसके रिएक्शन सोचने हैं या नोट से निकाल लेने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में चेंज हो रहा हो, जाते हैं इसको किस से रिएक्ट कराना है, व्हाट इज द रिएजेंट, यस NaOH हो सकता है, Na हो सकता है, कोई भी जो आपकी मर्जी का हो वो यूज कर लें। कंडीशन क्या है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डिजोल्व इन वाटर जैसे एक्वस होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन, ओके, एसिड बेस, या फिर इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। सॉरी नो, एक प्रोडक्ट नहीं है ना, ये तो आधे लिखे हुए, एक्चुअल रिएक्शन में ये CH3COONA और साथ क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो आपने ये पूरी बात लिखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में बताएं क्या हो रहा है, इस वाले में 67 में, व्हाट इज हैपनिंग इन 67, यस। तो आपको किस किस अल्कोहल से कराना है, तो व्हाट विल बी योर रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, रिएजेंट क्या होगा, वो तो एस्टरिफिकेशन रही है, इसका मतलब अगर ये एसिड है तो उसको अल्कोहल से कराना है। उस तरफ एस्टर में जाके देखो, जो बना है एस्टर उसमें कितने कार्बन है अल्कोहल में, 1, तो इसका मतलब है मैथनॉल से रिएक्ट कराएंगे। कंडीशन क्या होगी इसमें, H2SO4 क्या होता है, कैटलिस्ट। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, और कंडेंसेशन। समझ आ रही है बात। इसी तरह ये देखो, ये रिएक्शन हमने कल किया था 63 वाला, क्या हो रहा है जरा देखें, ये कीटोन है, ये कौन है,
कीटोन है। तो कीटोन में अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग इन द कीटोन? ओ के साथ कौन आ गया? एच। सी के साथ कौन आ गया? CN। तो आपको याद होगा क्या रिएजेंट था हमारा, कल ही किया हमने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसका मैकेनिज्म भी दिया था, HCN। क्या थी कंडीशन? NaCN एक्वस या KCN एक्वस क्या था? कैटलिस्ट था, हीट भी करना था। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या थी? कल हमने इसका मैकेनिज्म किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपने हर एक रिएक्शन को ना इसी पे नहीं, इस रिएक्शन को ना अपनी नोटबुक पे कॉपी करके उसके नीचे 3 कॉलम बनाने हैं, रिएजेंट कंडीशन टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएजेंट कंडीशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और ये अप टू ये वाला 81 तक, बल्कि 81 नहीं, आखिरी छोड़ दें, यहाँ तक करके लाएं, ये 72 तक। 72 तक हर रिएक्शन का क्या लिख के लाना है? रिएजेंट कंडीशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, नोट्स लिख के। ये रिएक्शन हमारे सारे खत्म हो गए।